So this is day 7 of the internships has already been completed, but we had cleared some doubt in between, so it has been extended. But we'll give a brief overview of the course so that you can have an idea. So in the first class, we are told that in this internship, we are covering a complete design of a B plus G plus 4 building, which has been constructed up to basement plus G plus 1. That is, this is the basement portion and the ground floor and first floor. So design is done for 4th floor above the basement, but the construction has been done only up to the 2th floor above the basement. So basically, this is a design, or this is a 3D exterior view of this building. This will be a commercial building, and this is already built in Madrak, Odisha, and the adjacent buildings and site also we had discussed in the site visit part. In the site visit part, we discussed about how the site was when we had gone at the site. Sand filling was already done. In the left side, there was a commercial complex. Right side, there was a Kacha road. And in the front, there was a main road. So the points or the observation things which we need to note down at the site, we had discussed, like location of storage, connectivity, connectivity to the of the plot, and electricity and water, and your site conditions. So these things we just site conditions, and the land map, land plot layout map from any government authority. Like this is the map from your, as you can see here in bottom, is it is written that this is the map from the Amin. So because you don't want to construct your plot in the government area, so these things you need to observe. And like if you construct this house, you need to remove this electric pole for the safety. So these things you need to consider, which we discussed in the first class. And the second class, we had discussed about your survey. We discussed that there are two types of survey. That is the topographical survey, in which we determine the boundaries and the actual levels of the plot. And in the layout survey, we just put the drawings on the CAD file, which include the drawings of your foundation footings onto the ground. And we do this with the help of pegs here. As you can see, with the help of these pegs, we do this. And the instrument which we do this survey, that is the layout survey and the topographical survey, is the total station, as you can see here. So what happens in the total station is that we carry a particular temporary benchmark, so that the difference between the levels of the road and the plot and various coordinates, that is x, y, and z coordinates, which is also called the northing, easting, and elevation. So these coordinates can be found out. So after that, we had discussed about some of our construction steps, and site visit and layout already done. Then we had moved on to the foundation. In the foundation part, there are various activities which we discussed. Excavation. In the excavation, as we had discussed here, let me just in the excavation portion, we discussed that this is a tripod, and the type of the foundation, as we had seen in the structural drawing, was pile foundation, and this was an auger. And using the auger, the drilling is done, and during the drilling, we add bentonite so that the perimeter of the hole in which the piling work will be done is properly lined up, and the soil do not collapse. So after drilling the hole, the reinforcement cage is inserted below the ground, and with the help of this particular charge plate, as you can see here, the help of this particular charge plate, the concrete is inserted or poured into the ground. So this is the basic process of the pile foundation question. And then we have discussed about the sand filling, and we discussed the sand being a cohesionless material and it is easily compacted. So that's why sand is preferred over your soil. In the case of compaction, if you use soil for backfilling, the soil will take 3 to 5 years time to settle down, and it may result in cracks of the structure built above it. So for the backfilling, that's why soil is used. And after that, we discussed about PCC, that is plain cement concrete. The PCC is given below the beams, or the grade beams in this case,
And in from normal residential building, the PCC is given below foundations or the footings, and also in case of below plinth beams. So we had also shown you an image of PCC below your the foundation works. We had shown you here. That was the PCC below the foundation works. Yeah, this one. This one we had shown there is a PCC after the excavation. The sand filling is done. After the sand filling, excavation is this excavated hole. 100 layer of sand is put, and after that 75 thickness PCC is done. So we had discussed about this, and after your PCC, what happens comes is the reinforcement binding. So the first reinforcement binding is of the footing. So this is the reinforcement cage of the footing, and the drawings also we had discussed of the reinforcement in the previous class. And what are the things which you need to observe? And we had also discussed this 1, 2, 3 bar, 4 bars, which are known as starter bars. Starter bars are bars which connect the column and the footing. So these 4 starter bars are given to connect the column and the footing together, which is the purpose of the starter bars. So anytime next time you go to a site, you can just tell that these are the starter bars. They are used for the connectivity of the columns and the footings. So these things we already discussed, and moving on, we had moved on to the shuttering works. And in the shuttering works, there are 2 types of shuttering material, as you can see here. We can just show you a different type of shuttering as well. This is your shuttering work. Yeah, we had calculated the amount of shuttering material which will be used in the footing, and also they calculated the reinforcement number of reinforcement which will be used in the footing. We covered in second or third class, I think. Please watch that video if you haven't seen that. So these shuttering material can be of plywood or can be of steel, and this wooden pattas are given for the support of these shutterings. So this is all about shuttering. And steel, if you use steel shuttering, it is better. Inside the steel shuttering, there is some oiling can be done. Here also some oiling can be done, or some plastic or polythene sheets can be applied, so that the shuttering material can be removed easily after the concrete casting is done. So these are all the basics of the shuttering we already discussed. And then we had discussed about concreting, and then we had also discussed about what are the things which we need to observe during concreting. And please note down an additional point which we had not mentioned in the previous class. In concrete is usually done by a mixed by using a mixer, as we were told in the previous class that mixing of concrete should be done not done by manual process. It can be done using a mixer. So the maximum rotation of the mixer should be between 35 to 40 rotations. Okay, 25 to 30 rotations of the mixer, concrete mixer. If you want to know what is a concrete mixer, I hope I can show of the concrete mixer at the site. Pardon me for looking the screen. Sir, 1 second, please. Repeat, please, sir. Concreting part, no? Yes, sir. Okay, show you one video. Yeah. Let me just share my screen, then I'll show you one video. So we'll wait for some time, and then we'll video will open. There is some problem. I can open it using another player. So basically now we'll show you the concrete mixer, and then we'll tell you some important points which you need to take care while mixing your concrete. Okay. Just give me a moment. Yeah, it's open now.
So basically this is the concrete mixer, and it should be rotated. As you can see, the cement, sand and aggregates all are, this water, then this is sand, and this is aggregates. These are mixed in this concrete mixer, and this should be mixed for 2 to 3 minutes, and the number of rotations of this machine will be 25 to 30 number of rotations. So this is the concrete mixer, and the concreting should be done using this concrete mixer. And we just go upwards in the further videos also and show you. This one can show you. While the concreting is done, we should use needle vibrators. Please note it down. We should use needle vibrators, like they're just pouring the concrete, and after that we should use needle vibrators so that the concrete is compacted. As you can see, this is the needle vibrator. This needle vibrator is used so that the pipe in this hand, as you can see, this is connected to electricity, and this is the needle vibrator. This needle vibrator makes sure that there is no voids or space left between the concrete. So that's it. So we had discussed about the concreting part. Concreting part we had discussed, that is the what we had the mixture we had discussed. The mixer should be, concrete mixer should be mixed for 2.5 to 3 minutes, and after the mixing is done, needle vibrator should be used so that proper compaction is done in the concrete. Yeah, now hope it is clear for now. This video as we had already shown. Yeah, concreting part we had already covered, and now moving forward to the further construction steps, we have the site visit. Sorry, this is the different PPT. Yeah, this one. Now about the grade beam spelling is wrong here. GRADE it will be. So the grade beam, just connects the different footings, or in this case the pile caps together. And about the grade beams reinforcement details also we had discussed in the previous class. The same reinforcement will be at the top as well as at the bottom in the grade beam, because it is subjected to your tension. So this is our grade beam. And now moving on, lift and basement wall details also we had discussed about the lift and the basement wall, and then the columns. And in the column we have the shuttering material, and while calculating the shuttering material of a column like footing, it's calculated as 2 into the, I suppose we have this 2 into this length of the column or particular width of the column, and 2 into your width of the shuttering, because some portion will be, as you can see if you can zoom in, some portion will be extra so that the shuttering material can fit. So these are the things. And in the shuttering works, one thing you need to take care is that you need to fit the shuttering materials properly, otherwise the leakage will occur. मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर आप शटरिंग मटेरियल को अच्छे से अगर आप बाइंडिंग नहीं करोगे तो आपका लीक हो जाएगा. जब वाइब्रेटर यूज करोगे कंक्रीटिंग के टाइम आपका लीक हो जाएगा कंक्रीट. दैट्स व्हाई while applying the shuttering materials you need to make sure that they are binded properly. So these were the things which were discussed. And then care should also be taken that curing should be done. In the curing, जैसे कि आप जानते हैं curing आपका जैसे रूफ होता है, उसको होता है आपका pond curing. मतलब आपको जब आपका slab casting होता है, when the slab casting is done, after that bunds are created. छोटे छोटे मतलब एक brick के या मोटर यूज करके, with the help of some mortars, some boundary is created along the entire slab and the water is filled, and after that curing is done. But in the case of the vertical members like columns, we cannot do this. So we use gunny bags, and the gunny bags is made wet. And the main purpose is the fresh concrete shouldn't be exposed to extreme weather conditions like sunlight and frost. So that's why this gunny bags and curing is done. And in some cases, in some big companies, membrane curing is also done, in which you don't need to sprinkle water. What does membrane curing is? It is a chemical which can be applied on the surface, any concrete surface, and after that the moisture from the concrete will not escape.
So that's all about curing, which we had discussed in the previous class. And as you can see here, we'll move forward to our slabs. So we have this slab beam. These are the beams of the slab. These are the columns. And so what are the things which you need to observe, which you need to just take care in case of a site visit where the slab casting has been done. So first you have to check the reinforcement is as part of your drawing or not. And the second thing you need to check is your this cover. Check for cover. So some cover blocks are provided here. It is not yet provided. Let me just see if we have any other image. So the gap should be maintained between these two particular, this bottom of this slab and the reinforcement. If I have any other picture, I'll show you. Let me see if I have any other picture here. Okay, this one is better. Okay. So as you can see this, so as you can see here, the reinforcement should not be touched to the bottom of the slab. There some cover should be maintained. So for that we use cover blocks. It's not visible exactly in this picture. And there is another thing. There is another thing that this is your chair. So for maintaining covers, Rupali, are you getting me? Rupali ma'am, there are two things. One is your cover and another is your chair. Okay. So chair is, as you can see, there is a top reinforcement bar and the bottom reinforcement bar. So you can please note it down that a chair is used for maintaining the gap between the top and the bottom reinforcement, like this. This one is the chair. This one is a chair which is used for maintaining the gap between the top reinforcement and the bottom reinforcement. And your cover blocks are used to maintain the Gap between the top. in a slab. Chairs are used to maintain the gap between the top reinforcement and the bottom reinforcement. So as you can see here, this is your top reinforcement and this is your bottom reinforcement. So for maintaining the gaps between these two reinforcement, the chairs are used in a slab. So let me show you another video also. We'll just have an idea about the slab reinforcement binding. Let me just show you a video so that you can understand it in detail. So as you can see, this is a slab, and now you can see this. These are the beams of the slabs. Now you can see this in this. The reinforcement grade of the column is written 500. Fe 500 is the reinforcement grade of the column, which is written. And another thing you have noticed that these rods have been bent. So this bend is called jacking. So this is done so that all the column rods are in straight line. So jacking. So this is done so that all the column rods are in a safe line. बैंड वाला क्यों मतलब यूज किया हुआ मतलब होता है? कौन सा वाला? वो जो बैंड वाला रॉड है ना, हाँ, वो क्यों मतलब बैंड वाला रॉड नहीं है या मतलब रॉड आपका स्ट्रेट था, और क्योंकि आपका जैसे ये वाला रॉड स्ट्रेट है तो इसी लाइन में आपको लाना है रेनफोर्समेंट को, जो रॉड को, मतलब नहीं तो ये क्या होगा आपका, जैसे ऐसे है करके स्ट्रेट होकर ऐसे हो जाएगा, तो उसको थोड़ा ऐसे करके थोड़ा अंदर ले आया ताकि वो आपका बेंड ना हो, ताकि वो ऐसे करके बेंड ना हो, बस वही पर्पस है। इसीलिए आपका जहां जहां पे कॉलम होता है वहां पे नीचे से कुछ बार को ऐसे करके
आपका अंदर अंदर की तरफ बेंड कर दी जाती है। तो ये है, और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे और जो कॉलम में जो आपको लैपिंग देते हैं ना, जैसे मतलब मान लो ये वाला लैपिंग दिया है यहाँ पे कॉलम में, जहाँ जहाँ पे लैपिंग दिया है देख सकते हो, मतलब एक बार तो 12 मीटर का होता है, जहाँ पे खत्म हो जाता है वहाँ पे लैपिंग देना पड़ेगा। तो लैप जो लेंथ होता है वो आपका 50D होता है। तो मान लो यहाँ पे 20 mm बार है, 20 mm बार है तो 50 × 20 मतलब आपका आपका जो है इतना आपका लैप दिया जाएगा, लगभग 1 मीटर का। 1 मीटर मतलब 3 फीट का लगभग लैप दिया जाएगा आपका। तो ये आपका लैप लेंथ है। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी है। So now you can see this beam, particular beam you can see here, and this is a roof beam and this is a conceal beam. The difference between these two beam is that the roof beam has a particular depth. Suppose the depth of size of this roof beam is 215 to 300, but the size of this conceal beam is 215 to 100. 100 is the thickness of the slab. So you can write down what is the difference between conceal beam and roof beam. You can just also mention it in your report after taking the screenshot from here. Basically, conceal beam is a beam in which the thickness or the depth of the beam is equal to the thickness of the slab. So depth of the beam equal to depth of the slab. This is a conceal beam, and it is provided to transfer loads of internal walls. तो कहीं कहीं पे मत मान लीजिए हमें मतलब मेन बीम नहीं देते हैं, कॉन्सिल बीम देके आपका काम हो जाता है। छोटा अगर वॉल स्पैन होता है तो उसमें क्या होता है आपका, हम लोग जो बीम देते हैं आपका बस स्लैब के डेप्थ के बराबर होता है, एडिशनल आपको नीचे जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्सिल बीम दिया है इसका डेप्थ जो है आपका स्लैब के डेप्थ के बराबर ही है, उससे ज्यादा नहीं गया। बट ये वाला जो है, ये वाला आपका रूफ नॉर्मल रूफ बीम है जिसका आपका डेप्थ है 300 mm। ये आपका डेप्थ दिया है। ये देखो, ये होता है आपका कवर ब्लॉक। दिस इज अ कवर ब्लॉक एंड डू यू नो व्हाट इज द मिनिमम कवर व्हिच इज शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्लैब? रूपाली मैम, सर the minimum cover which should be provided in a slab is 15 mm. Generally, a cover of 20 mm is provided in case of slab. And if the aggregate downsize, aggregate size is 50 mm downgrade, then only your 15 mm cover is provided. And in case of your columns, 40 mm cover is provided. And in case of beams, 30 mm cover is provided. So, and in case of beams, 30 mm cover is provided. Footing के लिए, for footings we have 50 to 75 mm cover. So for slabs it's 20, beam it's 30, and for your column it's 40, and for footing it's between your 50 to 75 mm. So this is your all about your covers in your slab. So we'll move forward. हाँ बोलो। बार बेंडिंग होने के बाद, हाँ बार बेंडिंग होने के बाद जो हमारा जो मतलब हाँ ये वाला सर, इसके ऊपर जो कंक्रीट लगता है वो मतलब कितना 3 फीट का लगेगा? नहीं देखो, जो या 1 मीटर? टोटल जो आपका थिकनेस होगा ना उतना ही आपका कंक्रीट लगेगा। और एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि जब हमारा स्लैब में जब आपका कंक्रीट कास्टिंग होता है उस समय आपका जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम में हम लोग एक मार्किंग कर लेते हैं कितने लेवल तक आपका कास्टिंग होगा। ठीक, नहीं तो क्या होगा ना, आप साइट में गए हो, आप साइट इंजीनियर हो, मान लीजिए कंक्रीट डाले जा रहा है तो आपको पता नहीं किस लेवल तक आपको कंक्रीट डालना है, तो ज्यादा भी लग जा सकता है। तो आपका पहले से आपका लेवल एक डिफाइन होगा और उसी लेवल तक आपको कंक्रीट आपका पोर किया जाएगा, कास्टिंग होगा। जैसे मिनिमम कुछ होता है कि इतना मिनिमम 4 इंच होता है वो स्लैब का थिकनेस। जो आपका स्लैब होता है उसको मिनिमम जो स्लैब का थिकनेस होता है उसका 4 इंच होता है। और यहाँ पे कोई चेयर हुआ तो मैं चेयर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद नहीं है।
मैं दिखाएगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका जो फुटिंग का रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे ये वाला पीढ़ी था, हाँ ये वाला। So this was our reinforcement in case of slab, and we had also discussed some of the important points. Another important point is this centering, which is done. So after the centering is done, the polythene sheet should be applied, so that after the concreting work is done, the shuttering materials can be easily removed. If you are not using polythene sheet, it's best to use some kind of oil. अलकतरा जो होता है ना, अलकतरा, उसको भी आप यूज कर सकते हो। जो इस यहाँ पे जैसे पॉलिथीन शीट यूज हुआ है, वहां पे आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, ताकि आपका जो है कंक्रीट उसमें शटरिंग मटेरियल में ना चिपके। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो मूविंग ऑन, दिस इज योर स्टेजिंग वर्क्स। इन दिस स्टेजिंग, दिस बैम्बू प्रॉप्स आर यूज्ड। इसको जो ये जो स्टैंड है, इसको प्रॉप्स बोलते हैं। तो जनरली आपके जो स्टील प्रॉप्स होते हैं, द स्टील प्रॉप्स आर जनरली यूज्ड इन केस ऑफ योर शटरिंग, sorry, centering for the slab. But in India, in most sites, we use the bamboo props. It should be taken care. If you are a site engineer, you should take care that these bamboo props are nailed properly to the ground. And if it is a steel prop, then also the same. It should be properly fixed to the ground, and it should not move upon the application of the loads. And as far as possible, it's good to use straight, good bamboo props. So this is the all about the staging works. And here also we have, as you can see, this is a junction. This is a portion where the reinforcement binding for the roof beam is going on. So after this will be completed, then we'll go for the slab casting. And देखिए यहाँ पे जैसे आपका जो सेंटरिंग स्टेजिंग वर्क है, स्लैब ऑनगोइंग है already. Already the reinforcements, all the staging works has been started using this wooden planks, and above it cardboard or plywood sheet will be applied. So after that, the slab reinforcement binding will be done. So as you can see here, now here also, as you can see, this is the slab reinforcements. स्लैब रेनफोर्स करने के लिए 2 days मिनिमम लगेगा या 1 days में हो जाएगा? 1 days में भी हो जाता है का, बट जनरली 2 days लगता है। 1 day में नहीं हो पाता, 2 day 3 day लगता है मिनिमम। यहाँ पे देख सकते हैं कवर ब्लॉक यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं सब चारों तरफ। और ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका ऐसे बेंड हुआ है, उसको क्रैंक बार बोलते हैं। तो क्रैंक बार इसलिए प्रोवाइड हो जाता है, आप अगर मान लो अभी कौन से, आप अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर हो फिक्स्ड बीम का, तो आपको पता होगा जो आपका शेयर फोर्स है वो आपका एंड में जो है वो ज्यादा होता है, टॉप में आपका एंड पोर्शन में ज्यादा होता है। तो इसलिए आपका जो टॉप में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट दिया जाता है यहाँ पे, इसलिए उसको क्रैंक किया जाता है। आप क्रैंक बिना क्रैंक के भी दे सकते हो, यहाँ पे बस यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे भी दे सकते हो। क्रैंक देना कंपलसरी नहीं है, टॉप में एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट देना कंपलसरी है नियर द सपोर्ट्स। तो ये था, सो दिस वाज इट। एंड देन दिस इज द स्टेयरकेस रीइंफोर्समेंट। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये इसको कहते हैं राइज एंड ट्रेड टाइप स्टेयरकेस। मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 टाइप का स्टेयरकेस है यहाँ पर स्ट्रक्चरली। if you just go, then we have the 3 types of staircase. I'll just try to show you in the whiteboard. So basically this type of staircase we have rise and trace type staircase। क्या होता है? ऐसे होता है, उसका ऐसे तो ये हो गया आपका राइज एंड ट्रेड टाइप स्टेयरकेस, जो अभी जनरली कॉमनली यूज होता है। और एक आपका वेस्ट लेफ्ट टाइप स्टेयरकेस। तो वेस्ट लेफ्ट टाइप स्टेयरकेस में क्या होता है आपका, ऐसे ऐसे होता है आपका, जो जनरली मतलब पहले यूज होता था ज्यादा वेस्ट लेफ्ट टाइप स्टेयरकेस। आपके घर में कौन सा टाइप का स्टेयरकेस है? राइज एंड ट्रेड। राइज एंड ट्रेड है, ओके। ये वाला आपका वेस्ट लेफ्ट है, वेस्ट लेफ्ट टाइप स्टेयरकेस। मुझे लगता है वेस्ट लेफ्ट टाइप है। अभी अभी क्या लगता है, ये वाला है ना आपके घर में? सर हाँ ये वाला है ना? हाँ सर, ये वाला
हाँ ये राइज एंड ट्रेड टाइप है, सॉरी वेस्ट स्लैब टाइप है, वेस्ट स्लैब। वेस्ट हाँ और ये आपका है आपका जो राइज एंड ट्रेड टाइप स्टेयरकेस, राइज एंड ट्रेड। तो ये दो टाइप का स्टेयरकेस है आपका स्ट्रक्चरली, एक राइज एंड ट्रेड, एक आपका वेस्ट स्लैब। तो जनरली पहले आपको वेस्ट स्लैब टाइप स्टेयरकेस दिया जाता था, बट राइज एंड टाइप स्टेयरकेस में क्या है आपका स्पेस मतलब ज्यादा नहीं लगता, तो वही आपका दिया जाता है। और एक आपका टाइप का स्टेयरकेस है ट्रेड टाइप स्टेयरकेस, वो आपका मूवी में आप देखे होंगे। यहाँ पे मैं आपको नेट में अगर हो सकता मैं दिखा देता हूँ, ट्रेड टाइप स्टेयरकेस, तो उसमें बस ट्रेड रहता है, आपका जो राइज है वो नहीं रहता। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो रहा है स्क्रीन? ये वाला जिसमें बस ट्रेड होता है, यहाँ पे ये वाला इसमें स्ट्रेट होगा आपका, कोई आपका देखिए राइज नहीं होता, डिजाइनर टाइप का होता है। यहाँ पे ऐसे आपका वॉल से यहाँ पे ऐसे कैंटिलीवर निकल जाता है ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका जो है आपका ट्रेड टाइप स्टेयरकेस है। तो ये बेसिकली दिस इज राइज एंड ट्रेड टाइप स्टेयरकेस व्हिच वी हैव seen in this picture. So while reinforcement binding, we should ensure that properly reinforcement binding is done and binding wires which are used is used properly. बाइंडिंग वायर्स आपका ज्यादा भी नहीं यूज होना चाहिए बट कम भी नहीं यूज होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए बाइंडिंग वायर्स का। तो वो सब चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड स्पेशली जो आपका स्टेयरकेस में शटरिंग मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से हमको चेक करना पड़ेगा, कोई आपका लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब ताकि आपका कंक्रीट वहां से लीकेज ना हो। तो वो सब चीज हमको चेक करना पड़ेगा। दीज आर द ऑल द थिंग्स व्हिच यू नीड टू चेक व्हाइल वी आर डूइंग site inspection in the case of your staircase reinforcement binding. So that was all in your particular activities of the site. So questions क्या क्या है अभी? Any questions? हाँ कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो। टाइप्स ऑफ स्लैब में तो टू हम लोग पढ़े हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। हम्म। सो टू वे स्लैब क्या होता है एक्चुअली? ठीक है, बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जब हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं ना, जब हम लोग स्लैब डिजाइन करते हैं तो आपको मतलब स्पैन ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए आपको ऐसे बिल्डिंग है, एक कोई भी आपका एक बिल्डिंग है, मैं आपको एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिखा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर करके कोई भी एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बोलता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया, उधर से चल रहा हूँ। एक सेकंड थोड़ा वेट करना, सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे स्लैब के स्पैन्स हैं, तो इसको हम लोग एक स्लैब कंसीडर करेंगे, इसको अलग, सबको अलग अलग हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग का एक लेंथ है, जैसे मान लो ये है, ये हम लोग का लेंथ है, ये हम लोग का एक लेंथ है, विड्थ है। तो कोई भी आपका ऐसे ऐसे करके स्लैब होगा उसको हम लोग अलग अलग कंसीडर करेंगे। और इसको आप देख सकते हो कि चारों तरफ से ये बीम से सपोर्टेड है। ठीक है, तो वन वे टू वे स्लैब अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो उससे सबसे पहले हमको जो कंडीशंस वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, लेट अस जस्ट see that. So basically we have a span here, let's just draw a rectangle. Visible हो रहा है तो screen? Yeah. Basically we have a slab here,
this particular slab we have here. Now, first thing we need to check is your aspect ratio. So what is the aspect ratio? Aspect ratio books में यहाँ पे है definition LX LY करके, but मैं basic सब कुछ बताता हूँ. Aspect ratio is equals to the longer dimension by shorter dimension. So this is the definition of the aspect ratio. Longer dimension By shorter dimension. Okay. So suppose we have a dimension here. Let us give a random dimension here, or from any drawing we can give. Suppose we have, just let me just open any of the drawing, and then we can. So this is the structural drawing. Visible है? सर तो जैसे कि आप देख सकते हो, मान लो ये वाला स्लैब हम लोग लेते हैं, पहला वाला, तो इसका जो लेंथ है, ये वाला स्लैब अगर हम लोग लेते हैं, इसका जो लेंथ है आपका 4522 है, इधर 4522, एंड दिखाई दे रहा है? एक सेकंड, अभी दिखाई दे रहा है? वो सर ओनली फॉर्मूला, वो जो लॉन्गर डायमेंशन बाय शॉर्टर डायमेंशन वो वाला दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं. और कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना? ओके, जो ठीक है, हम लोग उसको उसी को करते हैं. एक सेकंड को. ओके, ठीक है ना, ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना? तो इसको मान लो ये वाला जो है, इसको हम लोग टेक्स्ट दे देते हैं. अभी दिखाई दिया सर. दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, मान लो इसको 4 मीटर. ठीक है, और ये वाला है मान लो आपका 3 मीटर. ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे क्या होगा? एस्पेक्ट रेशियो इक्वल्स टू होगा आपका लॉन्गर डायमेंशन इसमें कौन है? 4/3. तो ये जितना आपका इक्वल्स टू होगा 4/3, ये हो जाएगा आपका 1.33. तो 1.33 विल बी योर एस्पेक्ट रेशियो. तो जो एस्पेक्ट रेशियो है, ये अगर आपका अगर ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो अगर ग्रेटर देन 2 है, देन इसको हम लोग कहते हैं आपका, क्या कहते हैं? और एक आपका लेस देन 2 से कम है, उससे अगर कम है तो आपका हो जाएगा ये 2 स्टेप, और अगर आपका 2 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपका 1 स्टेप. इसका मतलब क्या है? आपको मतलब थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट के अंदर तक जाना पड़ेगा. 1 वे 2 वे क्यों है? क्योंकि बेसिकली इसका कहना ये है कि मान लीजिए इसका स्पैन ऐसा ना होके, जैसे मान लीजिए मैं पिछले क्लास में बोला था, जैसे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, मान लीजिए ऐसे होता है, जो कॉलम का ये जो बीम स्लैब का लोड है आपका किस में जाता है? स्लैब का लोड बीम में जाता है. ऐसे आपके बीम्स होते हैं, चारों तरफ आपके बीम्स होते हैं, बीम में आपके और यहाँ पे अगर हम लोग कॉलम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कॉलम से मान लीजिए 4 कॉलम, 4 एंड्स में, कॉर्नर्स में आपका स्लैब में, और ये आपके बीम्स. तो ऐसे ऐसे आपके लोड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन जब ऐसे हो रहा है, आपका क्या होता है? आपका 2 वे स्लैब में आपका दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ बेसिकली आपका लोड डाला है. दोनों 2 वे, इसके मतलब इसको ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x ऐसे करके लिया है, तो दोनों तरफ आपका लोड जाता है. और 1 वे स्लैब में क्या होता है? आपका स्लैब थोड़ा अगर 2 से ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा ऐसे टाइप का होगा, ठीक है ना? तो आपका जो लोड है एक ही तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसलिए मान लीजिए इसका लेंथ, अभी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट करके मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ. मान लीजिए इसको 6 है और ये 2 है, ये 2 मीटर है, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो कितना होगा? हाउ मच विल बी द एस्पेक्ट रेशियो? एस्पेक्ट रेशियो ऑफ दिस विल बी योर इक्वल्स टू 6/2, दैट इज 3 होगा. क्लियर?
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन 3 मतलब ग्रेटर देन 2, हेंस ये हो जाएगा आपका वन वे स्लैब। ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कहीं किसी भी आपका स्लैब में कोई भी आपका स्लैब अगर 4 साइड्स में बीम से सपोर्टेड नहीं है तो वो आपको वन वे स्लैब है। मतलब ये आपका मान लीजिए हम लोग के पास एक रेक्टेंगल है एंड ये हम लोग के बीम्स हैं। एक साइड में बीम है, 2 साइड में बीम है एंड 3 साइड में बीम है। Okay, we have beams on 3 sides, but one side is not supported by beams. Okay, and suppose columns also we have suppose here. So we have columns and we have beams on 3 sides, but one side we don't have your beams, and the size is suppose ये 3 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, तो ये वन वे होगा, टू वे होगा? टू वे होगा ना, बट टू वे होगा नहीं। इसको टू वे इसलिए नहीं होगा कि टू वे का 2 क्राइटेरिया है। एक आपका जो पहला क्राइटेरिया है, इट शुड बी द स्लैब शुड बी सराउंडेड बाय बीम्स ऑन ऑल 4 साइड्स। तो अगर ऑल 4 साइड में बीम नहीं है तो वो टू वे नहीं है, तो वन वे ही है। उसके बाद आपका एस्पेक्ट रेशियो का क्राइटेरिया आता है। ओके मतलब टू वे के लिए लिख लीजिए आप, 2 क्राइटेरिया है। फर्स्ट दैट द स्लैब शुड बी सराउंडेड बाय बीम्स ऑन ऑल द साइड्स, ऑल द 4 साइड्स। The second criteria is the aspect ratio should be less than 2. So there are 2 criteria for the two-way slab. So हाँ बोलिए और एक बार बोलिए, स्पीड हो गया। कहाँ तक पकड़ पाए बोले ना? सर वो डेफिनेशन जो बोल रहे थे। So two-way slab has basically two criteria. The first criteria is that it should be surrounded by beams on all the side. ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे एक स्लैब है, तो यहाँ पे आपका एक साइड, 2 साइड, 3 साइड में बीम है, तो वो आपका एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो है आपका कितना है? एस्पेक्ट रेशियो आपका 3/2 मतलब आपका 1.5 है, बट फिर भी ये आपका वन वे स्लैब है, बिकॉज इसमें चारों तरफ आपका बीम नहीं है। समझ गए ना? और जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है द एस्पेक्ट रेशियो शुड बी लेस देन 2. So there are 2 criteria for the two-way slab, that is it should be the slab should be surrounded by beams on all the 4 sides, and the second criteria is that the aspect ratio should be less than 2. अभी क्लियर है? ओके, तो ये था बेसिक डिफरेंस वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का। तो आपका जो बिल्डिंग का जो स्टेप्स है, बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, वो क्या क्या है आप बोल सकते हैं मुझे अभी? पहले साइट विजिट, उसके बाद मैं आपको हेल्प करूंगा, साइट विजिट, लेआउट, उसके बाद फाउंडेशन, एक्सकवेशन, हाँ एक्सकवेशन, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद फाउंडेशन हो गया, फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, तो इस जो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होगा, सबसे पहले आपका साइट विजिट हो गया, जिसमें हम लोग साइट की कंडीशंस के बारे में थोड़ा मतलब देखें। उसके बाद क्या क्या होता है साइट विजिट में, क्या क्या पॉइंट्स होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विजिबल हो रहा है तो स्क्रीन? यस सर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग साइट विजिट जब हो जाता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं आपका लेआउट की तरफ। टोपोग्राफिकल सर्वे और आपका लेआउट सर्वे, दो टाइप का सर्वे होता है। उसके बाद सर्वे हो जाने के बाद जब आपको पॉइंट्स मार्क हो जाते हैं फॉर द एक्सकवेशन ऑफ योर फुटिंग्स, एंड देन वी गो फॉर योर फाउंडेशन वर्क्स। तो फाउंडेशन वर्क्स हैज some points in it in which you have excavation, sand filling, PCC, reinforcement binding, shuttering, concreting। तो बेसिक स्टेप्स है, फाउंडेशन के अंदर आता है। उसके बाद ये सारे स्टेप्स आपके कवर हो जाने के बाद ये आपके फाउंडेशन में हो गया आपका
एक्सकवेशन, उसके बाद सैंड फिलिंग, उसके बाद आपका पीसीसी, उसके बाद आपका आ गया रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग, रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग हो गया, उसके बाद आपका शटरिंग, शटरिंग के बाद आपका कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग के बाद आपका आ जाता है फिर से हम लोग का ग्रेड बीम। तो ग्रेड बीम यहाँ पे था कि पाइल फाउंडेशन था, ग्रेड बीम था, तो ग्रेड का आपका रीइंफोर्समेंट बाइंडिंग होगा, उसके बाद कंक्रीटिंग होगा, लिफ्ट होगा, बेसमेंट वॉल होगा, लिफ्ट है, बेसमेंट वॉल है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो पार्ट है उसको उसमें आपको आरसीसी वॉल हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद आपके हो गया आपके कॉलम्स, कॉलम्स में हमको कॉलम में क्या चेक करना पड़ेगा, ड्राइंग स्टडी करे कॉलम को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि आपका शटरिंग मटेरियल प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड है कि नहीं, शटरिंग मटेरियल आपका लूज नहीं होना चाहिए किसी तरफ कहीं किसी भी मतलब एंगल से, ताकि कंक्रीट आपका आपका जो है लीकेज ना हो। और जब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे तब हम लोग वाइब्रेटर का नीडल वाइब्रेटर यूज करेंगे, और कंक्रीटिंग हो जाने के बाद विल डू योर क्यूरिंग so that the hardness of the strength of the proper strength of the concrete is achieved. So उसके बाद हम then we moved on to your slab. In slab, after we should take care that the reinforcement detailing is properly done, the cover is properly maintained, and the spacing between the top bar and the bottom bar is properly maintained. And also we need to take care that the supports in the staging are properly nailed to the ground. These supports are called props. इस जो bamboo है इस props बोलते हैं, and the props को properly nail करना चाहिए ground के साथ, ताकि वो कोई movement के साथ कुछ हिले ना, so that they don't move in case of any vibrations. So this is it, and this is your footing reinforcement, and this is your cover blocks in the case of a slab. So and after स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, दिखाई अभी वही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्लैब में क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व, जैसे हम लोग एक पॉइंट डिस्कस की थी, वो जो बॉटम है इसमें हम लोग पॉलिथीन शीट या तो डालेंगे या तो हम लोग उसको ऑयलिंग कर देंगे, ताकि आपका जब शटरिंग मटेरियल जब रिमूव हो तब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम लोग किए थे। उसके बाद हम लोग स्टेयरकेस के बारे में डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चरली आपका 3 टाइप का स्टेयरकेस होता है, एक आपका राइज एंड ट्रेड टाइप, एक आपका वेस्ट लेफ्ट टाइप, एक आपका ट्रेड टाइप। तो यहाँ पे जो साइट में यूज है वो है आपका राइज एंड ट्रेड टाइप स्टेयरकेस। उसमें भी आपको जब साइट में जाएंगे तो प्रॉपरली आपका जो है स्टेयरकेस का जो आपका शटरिंग मटेरियल है प्रॉपरली आपका होना चाहिए, उसमें कोई गैप्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि गैप वगैरह नहीं है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, यहाँ पे गैप्स होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट लीक हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ हमको बेसिकली ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट, आपका एक B+G+4 बिल्डिंग का, जो कि यहाँ पे आपका हम लोग ईच स्टेप्स मूव किए, एंड हम लोग कुछ कुछ आपके एडिशनल चीज़ें भी हम लोग डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपका कुछ हम लोग पार्ट्स हम लोग कैसे रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेशन का, एंड कुछ कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ पे प्लानिंग का भी डिस्कस किए हैं, आप लोग भी टास्क किए हैं। और स्टेयरकेस का कंपोनेंट मतलब स्टेयरकेस में जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली जो कंपोनेंट्स है आपके आपके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टेयरकेस के राइज के बारे में आपको पता है, राइज एंड ट्रेड के बारे में आपको पता है ना। तो बेसिकली वही है आपका जो स्टेयरकेस का जो कंपोनेंट्स है, बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे टेक्स्ट से आपको बोल देता हूँ। मान लीजिए आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बोलिए। मिनिमम साइजेस। मिनिमम साइज आपको बता देता हूँ। मिनिमम आपका जो विड्थ होता है, मैं आपको कैसे स्टेयरकेस का प्लानिंग करता हूँ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट मतलब मान लीजिए आपका जो है, मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 फीट है, ठीक है, 10 फीट आपको फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे डॉग लेग स्टेयरकेस मान लीजिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो वी आर प्लानिंग अ सिंपल डॉग लेग स्टेयरकेस हियर। तो बेसिकली इसका जो आपका टाइप होगा वो देखने में कुछ ऐसे होगा। डॉग लेग स्टेयरकेस आपका यहाँ पे हम लोग
बेसिकली यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे, यहाँ पे ऐसे करके स्टेप्स होंगे, तो बेसिकली ये जो पोर्शन है ये आपका लैंडिंग पोर्शन है, 2 आपका लैंडिंग रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके स्टेप्स रहेंगे। जो यहाँ पे प्लान व्यू दिख रहा है, जो यहाँ पे लाइन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका राइजर कहते हैं, और जो ये है आपका ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेयरकेस में जब आप प्लानिंग करेंगे तो बेसिक आपको कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आपको जानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए राइज का जो आपका हाइट होता है वो जनरली आपका 6 इंच का होता है, एंड जो ट्रेड का आपका थिकनेस होता है, ट्रेड मतलब ये वाला जो होता है आपका जनरली आपका 10 इंच का होता है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कितना हमारा राइज है, कितना ट्रेड है। तो अगर मान लीजिए 10 फीट है तो नंबर ऑफ राइज कितना होगा आपका, इक्वल्स टू, हम लोग निकालेंगे इसको, फीट को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं आपका इंच में। तो इंच में कितना होगा, 10 फीट कितना होगा, 1 फीट में आपका 12 इंच रहता है, तो 120 इंच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइज हो जाएगा आपका 120 बाई यहाँ पे 120 टोटल हाइट है, और एक राइज का हाइट है आपका 6। तो कितना राइज हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया, 120 बाई 6 20 हो गया। तो 20 को हम लोग यहाँ पे मान लीजिए डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसको कहते हैं, इसको एक फ्लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वाले फ्लाइट में, जैसे यहाँ पे इस वाले फ्लाइट में हम लोग ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरफ हम लोग 10 स्टेप्स और इस तरफ हम लोग 10 स्टेप्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि फास्ट हो रहा है? हाँ सर, फास्ट हाँ हो गया सर, हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके नंबर ऑफ आपका राइज निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ राइज इन ईच फ्लाइट आपका निकल जाएगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। मैं 20/2 लिख देता हूँ, हो गया, इक्वल्स टू 10। तो नंबर ऑफ राइज अगर आपका 10 है तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 2 3 4 है तो आपका ट्रेड एक कम ही होता है। तो नंबर ऑफ ट्रेड हो गया आपका 9 कितना होगा, 9 होगा, 9। तो इसका लेंथ कितना होगा, ये वाला जो लेंथ है, ये कितना होगा लेंथ आपका, कितना होगा, 9 कितना ट्रेड का, इतना 10 इंच इंटू 9। सही है, क्लियर है। यस सर। ये 90 इंच हो गया। ठीक है, मैं सिंपल आपको कैलकुलेशन, 90 इंच हो गया। 90 इंच को हम लोग फीट में अगर डिवाइड करेंगे, फीट में हम लोग निकालेंगे, 90/12 हो गया आपका। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लगभग 7 फीट 6 इंचेस, ये हो जाएगा 90 इंच। कैसे हुआ पता चला, बस 12/12 कर दिए बस। ठीक है, 7.5 आ गया तो मतलब 7 फीट 6 इंचेस। ठीक है, और जो आपका ये जो बाकी जो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको होना चाहिए मिनिमम, जैसे मूवमेंट के लिए ये जो है आपका लैंडिंग है मिनिमम का 3 फीट का होना चाहिए। तो ये आपका लगभग ले सकते हैं यहाँ पे 3 फीट आप ले सकते हैं यहाँ पे इसको, और 3 फीट आप इसको ले सकते हो। ठीक है, और आपका लेंथ है, इसको भी, ये जो विड्थ है, इसको भी आप मिनिमम जो है 3 फीट ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 फीट आपका 6 फीट हो जाएगा ना। सर, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम आपका डायमेंशन। आप देखिए स्टेयरकेस का, यहाँ पे अगर ये दोनों के बीच में गैप देंगे तो और 6 फीट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो बट 6 फीट इंटू आपका 336 आ रहा है, एंड 3 फीट 6 फीट, और आपका यहाँ पे 6 + 7 मतलब 13 फीट 6 इंच। तो मतलब मान सकते हैं, मतलब मान सकते हैं 6/14 या 7/14 आपका
तो मिनिमम आपका स्टेयरकेस का साइज होता है। तो ऐसे करके हम लोग स्टेयरकेस का प्लानिंग करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताया आपकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। थैंक यू सर। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और कैसे आपको, जैसे आप रिपोर्ट जो है आपके लिए आपको सबमिट करना है, जैसे आप कौन से ईयर में हो अभी? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हो ना, जैसे थर्ड ईयर में हो तो फोर्थ ईयर में जाओगे, एक आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है आपका जो, जिसमें जहाँ पे इंटर्नशिप की उसका आपको रिपोर्ट सबमिट करना रहता है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा कैसे आपका रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो उसको यूज करके आप अपना रिपोर्ट बना लेना। कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे बीच बीच में कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने हैं एंड स्क्रीनशॉट्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं एंड फॉर्मेट पूरा रिपोर्ट का आपको दे दिया जाएगा, कोई मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आप उसी हिसाब से अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करो। एंड एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे है कि आपको अभी एक मैसेज जाएगा एक मैडम से, तो बस आपको क्या करना है, आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा ब्रीफली हम आपको जूम में आके बस बताना है कि आपको ये ट्रेनिंग कैसा लगा, बस रिव्यू देना अपने इस ट्रेनिंग का। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप काइंडली जो है अपना ये सेशन कैसा लगा आप बता दीजिए। ओम सर हैं, वो आपका रिव्यू सेशन आपका रिव्यू लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, ठीक है। तब हम सिविल सेंटर के साथ कनेक्टेड रहिए एंड जुड़े रहिए एंड आप अपने करियर में आगे बढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। तो थैंक यू। रिपोर्ट पे कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट आपको मैं जो है वीडियो दे दूंगा एंड उसके बाद आप रिपोर्ट सबमिट सर कर। ये रिपोर्ट कितने दिन में, मतलब एक दिन में रिपोर्ट का मतलब? टाइम भी दे दिया जाएगा, कितना दिन, लगभग 3 से 7 दिन आपको दिया जाएगा, मिनिमम 7 डेज आपको दिया जाएगा। उसके अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करना है एंड उसके बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट समर इंटर्नशिप का मिलेगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, तब बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।